In our last class, we had started off the chapter that is emerging mode of business. And then I explained you the difference between a traditional business and emerging mode, and that now more and more businesses are moving towards the electronic mode since because of the environment, because of the government policies, because of the ease, e-business is now becoming more prominent. Now, business यहाँ पर is not only the one where we are buying and selling the things. It is also about the knowledge. It is also about the services. It is also about the after sales services where electronic media has helped us. We had done this way, and then I also explained you about the benefits of e-business. Means it's convenient. You can, and as a businessman, you can open and close it anytime. It is very easy. It's a child's play, in fact. Because of less government intervention, इसको open करना, इसको चलाना बहुत आसान रहता है. Then you have your buyers as well as your sellers across the world. And this is also where you are moving towards a paperless society, जहां पर पहले हम लोग अपने टेंडर को लेने के लिए we used to personally go, we used to get the files. अब क्या है, on the emails, on the facsimiles, we are getting all the details. But of course, जब हम किसी सामान को खरीदने जाते हैं, जब हम उसको हाथ लगाकर खरीदते हैं, तो उसकी अपनी ही एक मतलब आर्ट होता है. That cannot be there in a what you call as e-business. And saman chahiye, you went to the market, you got it immediately. But in the electronic business, there might be a gap, then not say suitable for everyone who are not that much technologically downgraded. रिस्क बहुत सारे हैं, अभी हम पढ़ेंगे रिस्क हमारे, जैसे डेटा ट्रांसमिशन हो गया आपका. इवन दो सम ऑफ द बिजनेस दे क्लेम दैट द चैट्स आर एनक्रिप्टेड, उसके बावजूद भी आपके साइबर जो सिक्योरिटी है उसका एक थ्रेट रहता है. देन मेनी पीपल फील इनसिक्योर्ड एंड दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू मूव. एंड ऑफ कोर्स एथिकल फॉलआउट तो रहता ही रहता है. येट आने वाला टाइम कंप्यूटर का है, आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है. तो दिस बिजनेस इज गोइंग टू इंक्रीज नॉट डिक्रीज. आपके पेपर के अंदर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस आता है. नाउ ये है आपका कि आपको जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, तो व्हाट आर द वेज. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है. The question will not be on the basis of what we call as online transaction. You want to buy a washing machine for your mother. You saw an advertisement on a very famous platform, Arisen.com. You want to buy, you now write down the steps. ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप लोग बहुत सारा सामान मंगवाते हो, इसीलिए उसके अंदर तो आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ यू. नाउ जब हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू बाय समथिंग, व्हेन वी वांट टू ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, the transactions can be money, the transactions can be goods, the transactions can be services, right? तो पहले we need to seek the details. पहला हमारा है. Secondly, you have to buy, and third is the delivery stage. Now there might be, except delivery stage, all stage unvalued flow of information, जैसे time consuming, दोनों जगह पर टेलीफोन का होना,
अगर बाय पोस्ट होता है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन नेट में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम एक अलग चीज है, बट इफ यू आर बाइंग समथिंग ओवर द नेट, आपने अभी जाकर देखा, इवन while you are putting your ears on my lecture, you might be there on the other platform and buying something. They are there. So very first is register. ये जो पेपर में ये जो लिखा हुआ ना मेरा बच्चा, ये आपके पेपर में आपको लिखना है। वैसे तो दीज आर ऑल योर डोमेन, आप लोग खुद भी लिख सकते हो। while you are buying, जैसे आपको अमेजन से भरना करना होता है तो हमें अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। sometimes there are certain platforms जहां आप as a guest also you can sign in. So first of all you need to create an account. देन आपका अकाउंट जब बनता है तो यू आर ऑल्सो गिवन अ यूनिक पासवर्ड, जिसको हम लोग मतलब कि शॉपिंग कार्ट में जब हम ऐड करते हैं, देन यू हैव क्रिएटेड एन अकाउंट। नाउ यू गो टू द मेन प्लेटफॉर्म, you want to buy some t-shirts, you want to buy some cell phones, you want to buy some books, you want to buy some musical items, or maybe the cover of phone आपने जो है अपने कार्ट में ऐड किया। and then once you have added, then the third one is your payment mechanism. In some you have the COD facilities, कुछ के में तो आपके सीओडी होता है, आपने देखा होगा इट इज रिटन क्लियरली, इसमें सीओडी नहीं है। सीओडी मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। देन यू कैन ट्रांसफर द मनी थ्रू द नेट बैंकिंग, आपने देखा होगा यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पेटीएम, जी पे, ये सारे लिखे हुए होते हैं। इफ यू हैव सीन, और आई नो यू मस्ट हैव सीन इट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। और हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, बिकॉज अ कार्ड इज मेड ऑफ some special plastics, and they are also one of the most common medium of online transactions. Now what is the difference between a credit card and a debit card? आजकल तो क्रेडिट कार्ड पर भी ईएमआई है और डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? The limit of credit that is given to you is based on certain facts. Like आजकल तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं, दे आर गिविंग द क्रेडिट कार्ड्स विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज ऑल्सो। लेकिन अगर हम बड़े बड़े बैंक्स के बारे में बात करें, लाइक एक्सिस हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये लोग आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं ऑन सर्टेन बेसिस, लाइक योर सैलरी और द अकाउंट यू आर मेंटेनिंग। बट क्रेडिट कार्ड वेयर यू आर borrowing, where the rate of interest is more, whereas debit card is when you are buying it through your own savings fund. Then you have the digital pay. पहले हम लोग जो है चेक वगैरह भी रखते थे, but now check is outdated because people are very there are few people who are using check, and at certain point only, not in the common use. तो पहले तो ये होता था कि you could even pay through the check also. देन यू ऑल्सो हैव द जी, मतलब कि आपके पास आजकल क्या है, ये ऑनलाइन आपके जो अदर वॉलेट्स हैं वो भी आ चुके हैं, लाइक पेटीएम वॉलेट हो गया, जी पे हो गया आपका, ये भी आपके जो है एड ऑन हो चुका है। सो दिस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट व्हाट यू आर बाइंग, then it depends on that particular vendor whether they are using all these platforms. Like कुछ आपके होते हैं, they don't accept CODs, so that depends from where you are buying, but these are the options. And once you have paid, then after the given time your order will be delivered at your doorstep. दूसरा, अभी आजकल में ऑनलाइन में क्या है, पिछले साल 2019 में the new consumer protection act was added. तो पहले जब हम लोग ये सामान खरीदते थे तो वी वर नॉट हैविंग द प्रोटेक्शन, अगर सामान खराब हो गया या फिर किसी अनजान जगह से, बट नाउ एज पर द सीपीए वी ऑल्सो हैव द क्लेम. सो एवरी ट्रांजैक्शन ऑल्सो हैज अ कस्टमर सर्विस.
you can return back, you can claim for the refund, you can complain. तो आपका पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐसे चलता है, ठीक है। येट कई बार क्या होता है, ये जो मैंने 1 2 3 ये जो पॉइंट्स बनाए हैं ये पेपर में ऐसे ही आता है। सर्टेन टाइम्स देयर माइट बी एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिस्क। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी कई मतलब एक आध बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्लेस द ऑर्डर बट वहां पर ऑर्डर पहुंचा ही नहीं, आपके बैंक से पैसे कट गए हैं और आपके पास एक गंदा सा मैसेज आता है दैट आपका जो इफ द अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड इट विल बी रिटर्न बैक टू, इट विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर अकाउंट विद इन 7 days। और इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब तुम पैसे काटते हो तब तो तुम तुरंत काट लोगे और जब वापस करना होता तो तुम्हें 7 दिन का टाइम चाहिए होता, बट दैट इज हाउ द वर्क्स। तो दिस इज वन ऑफ द रिस्क। The intended delivery does not take place. Goods are delivered at wrong address or goods other than the order may be delivered. आपने कपड़े मंगवाए थे शाहरुख खान के, आपके पास जॉनी लीवर के कपड़े आ गए, and very common. So that is why I avoid buying the stuff of, मतलब क्लोथ का तो मैं जब तक पक्का नहीं हूं मैं नहीं खरीदती, क्योंकि साइज का कुछ नहीं पता होता है। I once I had ordered a shoe, बहुत सुंदर थे and those shoes were really, मतलब कि वो देखने में भी इतने खूबसूरत थे and as per my size I had ordered, और जब वो आए तो वो इतने छोटे से आए and when I spoke to them they said कि ये हमारे specifications ये है। तो certain times it may not be that what you have ordered, sometimes the order may go to some other place। आजकल तो OTP फैसिलिटीज आ गई हैं, सो मेनी ऑफ द डिलीवरीज ये वाला जो ट्रांजैक्शन रिस्क है ये थोड़ा कम हो गया है। लाइक यू रिसीव द OTP and unless and until you don't share it with the delivery man, the order cannot be delivered। seller does not get the payment for the goods supplied but customer कहता है कि आई हैव, मेरे बैंक से कट गया है। For protecting the credit card from being misused, shopping malls these days use the encryption technology such as Netscape Secure Socket Layer। आजकल आपने देखा होगा जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें भी दे हैव द स्पेशल काइंड ऑफ, मतलब वो लोग ऊपर जो है मेंटेन कर रहे हैं एनक्रिप्शन को। प्लस द टेक्नोलॉजी हैज आल्सो बीन एनक्रिप्टेड। और अभी आजकल क्या है, while we are using even we don't need to put our pin also, हमें पिन भी डालने की आजकल जरूरत नहीं पड़ती है। You can directly buy or sell, but yet ये ट्रांजैक्शन रिस्क आपके रहते ही हैं। नाउ ये जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स अभी पीछे हुआ था व्हाट्सएप का जितने भी मैसेजेस थे हम अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने डिलीट कर दिया है, बट ऑन द अदर हैंड these data may be at the risk of being exposed। और ऐसा बहुत बार होता है, even though the companies claim that they have encrypted it, but still data stored in the systems, जैसे कि हम लोग जो है that is one of the माइनस पॉइंट की आज की डेट पर जब आप लोग कोई सामान को खरीदना चाहते हो तो द कंपनी और द प्लेटफॉर्म विल बी आस्किंग द कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम योर एंड। लेकिन जब आप कंप्लीट डिटेल्स देते हो लाइक डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह देते हो, तो हो सकता है कि आपकी वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हैक हो जाए। एंड दिस हैकिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट attack which really still till date we have not got any solution। like एक बार हुआ था, पता नहीं कौन सा वायरस था that had attacked the entire world। certain time वायरस क्या होता है, वायरस is created, मतलब सीरीज ऑफ कमांड, जब हम किसी मैसेज को ओपन करते हैं तो दैट वुड हैक, मतलब कि दैट वुड इरेज ऑल द। वेरस आपके हैकिंग में क्या होता है,
आप ऐसा प्रोग्रामिंग बनाते हो जिससे कि दूसरे का सारा जो मैसेज है या फिर जो डेटा है उसको आप अपने तरफ ले आते। हैकिंग आपका जो है एथिकल भी है, यू नो। एथिकल हैकर्स जो होते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर कोर्स है जो बच्चे बीसीए वगैरह करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बीसीए दे कैन गो फॉर एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग आपका जो है, जब आप लोग मतलब रॉ वगैरह में जो लोग काम करते हैं, द वन हु आर वर्किंग विद दिस इंटेलिजेंस एजेंसी, वहां आपका हैकिंग इज इम्पोर्टेंट। बट in the business front, certain times it is hacked, the computer is completely hacked, उनका पूरा डेटा हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं, वहां उसका डेटा होता है और हमारे स्क्रीन पे आ रहा होता है। sometimes you put the, मतलब वायरस आता है, वायरस स्पेसिफिकली इट माइट बी अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कंप्यूटर और पर्टिकुलर, ऐसा बहुत बार होता है। Though there are antivirus programs like आपका McAfee वगैरह है, but still दीज, मतलब कि जो डाटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन रिस्क है, ये बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि डेंजरस रहता है। एंड फुल फॉर्म ऑफ वायरस आपका, जैसे हम कहते हैं मोडम, मोडम का फुल फॉर्म इज मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? commonly operated machine purposefully used for research and science, for research and development, computer। सिमिलरली वायरस आपका है वाइटल, वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, एंड मतलब कि अंडर, यू स्टैंड्स फॉर अंडर, सीज, सीज मतलब थ्रेट, रिस्क। वायरस का फुल फॉर्म इज वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। नाउ ये तो थे हमारे डेटा। अब नेक्स्ट हमारा हो सकता है, देयर माइट बी रिस्क टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वो रिस्क नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा कॉमन है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? द बुक्स which are there on the net. Now we are able to access any kind of book. आप किसी भी राइटर की बुक से कुछ भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। दिस इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब जहां माइंड लगा है, एंड देयर इज हमेशा जो है दीज थिंग्स आर कॉपीड। इवन दो जब हम लोग म्यूजिक वगैरह में बोलते हैं तो पायरेसी हम लोग बोलते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कॉपीराइट बोलते हैं। द वर्ड वी यूज इट, कॉपीराइट। मतलब आप अगर एनसीईआरटी की बुक में ना देखोगे ना, तो उसमें लिखा होता है पीछे भी, नॉट टू बी रीपब्लिश्ड। अगर आप पकड़े जाते हो तो यू आर पुट अंडर द जेल। लेकिन लेकिन on the other hand, these are very common. So if you want your business should be well managed, you should have a designed website, क्योंकि वेबसाइट बहुत फर्क पड़ता है। adequate computer hardware, responsive and qualified workforce, and effective telecommunication system. So this is how business can be expanded using the electronic media. Now हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि बिजनेस, हमने पढ़ा अबाउट goods, services. When I started the chapter last class, I also told you कि there are two aspects. एक आपका है ट्रेडिंग, एक आपका है, हम लोगों ने पढ़ा था the what are the ways through which e-business is carried out, B2B, B2C, C2C, ये हमने करा था। But we also had one concept which I said, BPO and KPO। ये वाला जो कंसेप्ट है क्लास 11,
one of the most important, one of the most confusing, as well as one of the most repeated question. BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अब जैसे आपने देखा होगा कि एड्स आते हैं, राइट? कोई भी पिक्चर, कोई भी मतलब कि आपका प्रोडक्ट है, उसका एड आता है. मोस्ट ऑफ द एड्स आर बाय रणवीर सिंह, रणबीर कपूर. तो आपको क्या लगता है कि जो कंपनी है वो रणबीर घर के घर जाकर बोलते ओ रणबीर चलो आओ मेरे यहाँ पर काम करो? नो, नॉट एट ऑल. कंपनी क्या करती है, अपना जो मेन बिजनेस है यानी कि खरीदना, बेचना, बनाना, इस पर ध्यान करती है. एंड कुछ आपके एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट यानी कि एम्प्लॉयज को लेकर आना, एडवर्टीजमेंट्स, सर्टेन टाइम्स कंप्यूटर से रिलेटेड, ये किसी और कंपनी को या किसी और एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे देती है. अब ये उस कंपनी का काम होता है कि वो उससे रिलेटेड सारे काम करे. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट. इन द एडवर्टीजमेंट हम क्या करते हैं, we see that Ranveer Singh or XYZ is coming on the, Sara Ali Khan is coming, Katrina is coming. It is not the company who is taking this. वो लोग देते हैं टू डिफरेंट सोर्सेस. अब ये सोर्स वाले क्या करेंगे, कंपनी का जो बजट होगा, कंपनी किस तरीके का एड चाहती है, प्रिंट एड चाहती है, टीवी में एड चाहती है, न्यूज़पेपर में एड चाहती है, कंप्यूटर में एड चाहती है, दे वुड बी डिजाइनिंग द एड अकॉर्डिंग टू द बजट द कंपनी हैज गिवन. And if the company instructs them that take the celebrities, so they would be roping up them. And कंपनी का ये जो एडवर्टीजमेंट वाला सारा जो काम है वो एजेंसी करती. इट इज नॉट डन बाय द कंपनी इटसेल्फ. उसी तरीके से आपने फोन खरीदा, सिम प्रॉब्लम कर रही है, सिम अभी चालू नहीं हुआ है, यू कॉल, आप कहते हो मैंने कंपनी को कॉल किया था. आप कंपनी को कॉल नहीं करते. नीदर एयरटेल नॉर आपका वोडाफोन या फिर आपका रिलायंस आपसे बात कर रहा है. वो जो बात करते हैं ना वहां पर, दे आर ऑल द बीपीओस, कॉल सेंटर्स, जिनको एग्रीमेंट पर, एजेंसीज को एग्रीमेंट पर ये सारा काम दे दिया जाता है. एंड इट इज दैट कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू. और तो इसके अंदर हमारे बड़े सारे काम होते हैं, लाइक आपका एडवर्टीजमेंट का काम होता है, कुरियर का काम हो जाता है, आजकल फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब मेन जो काम है वो कंपनी करती है, बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, दे रिक्रूटमेंट के लिए, स्टाफिंग के लिए, दे में कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो एजेंसी होगी ना, वो सिर्फ एक कंपनी के लिए काम नहीं करती है. They work for different companies. Like in India, Convergys, Genpact, they are very famous BPOs. आप उनकी कंपनी में जाओगे, ये कमरा एक कंपनी के लिए कॉल सेंटर होगा, दूसरा कमरा दूसरे कंपनी के लिए कॉल सेंटर होगा. इस तरीके से वो लोग काम करते हैं. सो द कॉल सेंटर्स, द एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, ये सब आपके हो सकता है. ऐसा नहीं है कि हर कंपनी आउटसोर्स करती है. देयर आर कंपनीज जो अपने मतलब जो एडवर्टीजमेंट वगैरह खुद का भी करती है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज. एंड आज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आज एडवर्टीजमेंट का जमाना है, और इसीलिए कंपनीज वांट कि वो लोग अपने मेन फंक्शंस जो है, कंपनी का जो मेन काम है उस पर फोकस करें, एंड उससे रिलेटेड जो काम है वो बीपीओ से करवाएं. सो दैट इज आपका बीपीओ. लाइक कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करवाना,
कॉन्ट्रैक्ट देकर रिसर्च करवाना, सेल्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स करवाना, दिस कैन बी देयर। आपके भी आता होगा, उनको तो नहीं पता है ना कि रमा मैम इज नॉट, मतलब कि सुपर रिच। वो कॉल करते हैं, हाँ जी मैडम आप रामा राघवन बात करो। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पहले नाम तो बोलना सीख जाओ। देन आई रियलाइज कि भाई वो लोग कहाँ से बोलेंगे, दे आर ऑल 10th और 12th पास आउट हैं, अभी इनको इतना कुछ पता तो नहीं है। एंड दे से कि मैम आपको कंपनी की तरफ से जो है क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। ये जो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कॉल करते हैं वो कौन है? दे आर ऑल केपीओस। कभी कभी आप कोई सामान वो करते तो केवाईसी आपका होता है, पेटीएम का आपका केवाईसी करवाना है। आप जब बैंक से लोन लेते हो तो उससे पहले आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द नॉलेज, विच इज रिलेटेड टू द एक्सपर्टीज, मेरे वर्ड्स को याद रखना, ये पेपर में आता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस रिसर्च, लीगल प्रोसीजर, देन बैंकिंग, ये सब हमारा आता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। मतलब बीपीओ और केपीओ ही है। बीपीओ स्पेसिफिकली जाता है फॉर द कॉल सेंटर्स रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट वगैरह में। एंड केपीओ जाता है जहां आप नॉलेज को दूसरों के थ्रू आउटसोर्स करते। You are getting the work of knowledge done by others. Like एक बैंक को लोन देना है, ठीक है, बैंक को लोन देना है, अब बैंक को डिटेल्स चाहिए। अब बैंक को डिटेल्स चाहिए तो बैंक कहां से लाएगी? दे वुड बी गिविंग दिस टू एनी अदर एजेंसी, जिनका काम होगा उन लोन एप्लीकेशन को रिसीव करना, उसको स्क्रूटिनाइज करना, उसको चेक करना, ये सारा काम उनका होता है। लॉ, लीगल, अब कंपनीज में कॉर्पोरेट लॉयर का होना जरूरी है। नॉट एवरी कंपनी इज हैविंग अ कॉर्पोरेट लॉयर्स, और होने के बावजूद दे रिक्वायर, अब उनको लॉ लीगल काम करवाने हैं तो दे मे गिव दिस कंप्लीट पूरा एक अग्रीमेंट बनाकर दे दें किसी एजेंसी को। There where you require the expertise, where you require knowledge, where you require people with better skills, वहां हमारा केपीओ चलता है। केपीओ बीपीओ का पार्ट है, बट केपीओ डील करता ओनली विथ एक्सपर्टीज इन द फील्ड एंड नॉलेज, वेयर एज बीपीओ इज फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो कंपनी खुद ना करके किसी और से करवाती है। Why do we need outsourcing? Because पहले कंपनीज क्या करती थी, सारे काम खुद करती थी। प्रोडक्शन है वही करेगी, सेल्स है वही करेगी, मार्केटिंग है वही करेगी, और वो होता था टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, क्योंकि हर काम में हम माहिर नहीं होते हैं। बट विद इंक्रीजिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, अब वो लोग जो है आउटसोर्स करते हैं कुछ एक्टिविटीज को, जिससे उनको वो उन लोगों को देते हैं दोज हु आर एक्सपर्टीज इन देयर फील्ड। हमें हर काम तो नहीं आता होगा, आई मे बी गुड इन सेल्स बट आई मे नॉट बी गुड इन कंप्यूटर। तो ये जो कंपनीज होती हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं, दे गिव द बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट। देन लार्ज, क्योंकि जो कंपनीज इन चीजों को लेती हैं ऑन what you call as on the agreement, ये लोग कंपैरेटिवली सस्ते काम करते। व्हाई? क्योंकि मैं मेरी मतलब जेनपैक है, जेनपैक के पास 100 कंपनीज है। सो दिस वे द रिडक्शन इज देयर इन द कॉस्ट। हम करेंगे तो शायद वो हमें महंगा पड़ेगा। देन वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट, हमें अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाने पड़ते हैं, एंड कंपनी में अलग अलग एक्टिविटीज पर हम ज्यादा ध्यान करके प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और आजकल आप मानोगे नहीं,
ये जो आउटसोर्सिंग है, this has become really a boon for the business. But yes, while you are giving your work to others, आपकी confidentiality जरूर जाएगी. Then what is the meaning of sweat shopping? स्वेट शॉपिंग का मतलब होता है कई बार वो लोग अपनी कंपनी में, इट इज नॉट डीलिंग विद द मेन कंपनी, वो लोग अपनी कंपनी के अंदर भाई कॉस्ट कटिंग करनी है, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बिकॉज उनका अल्टीमेट काम होता है ज्यादा प्रॉफिट कमाना. Certain times the companies may be using the unethical way. एंड जब हम बीपीओ जरूरी नहीं है ना, अब हमारा इंडिया इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बीपीओ फॉर कंपनीज विच आर लोकेटेड इन यूएस. वहां के लोग कहते हैं कि वहां पर तो इनफैक्ट ट्रंप ने कहा था इफ आई कम टू पावर मैं ये हटा दूंगा. तो वो लोग कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, बट दीज आर आउटसोर्स टू अदर कंट्रीज. आपकी जितनी बड़ी कंपनीज है उन सबके बीपीओ हमारे पास है. Apart from BPOs, KPOs, e-business, जब हम लोग पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो we also have the smart cards. The smart card can be a debit card, a credit card, or it can be a gift card. Any plastic card which can store some data. और आजकल ये जो स्मार्ट कार्ड्स हैं दे आर हेल्पिंग अस इन मेनी वेज. हमें बहुत सारे जगहों पर काम करवाते हैं. जैसे आपका सिम है, सिम इज सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन. आपका जो सिम है दैट इज आप लोगों के जो अपनी व्हाट यू कॉल एज फोन में सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल्स. पहले हमारे पास होते थे अलग तरीके के सिम, बट नाउ वी आर हैविंग द जीएसएम ग्लोबल सिस्टम. पहले होता था इनसाइड में, मतलब रिलायंस का एक फोन आता था, देयर वर टू काइंड्स ऑफ फोन. एक आपका होता था जीएसएम सिम जिसमें हम सिम को बाहर से लगाते हैं तो वी कुड चेंज इट एनी टाइम, और दूसरा आता था जो कि लगा हुआ आता था, दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक. देन देर आर, मतलब कि जो एटीएम्स या प्लास्टिक कार्ड्स हैं दे आर ऑल्सो मोर यूजफुल सिंस दे आर इजी टू कैरी, सेफ आपका है. And smart cards are also becoming, and smart cards are not only debit cards and credit cards, they are also related to many. आजकल जब हम लोग सामान वगैरह खरीदने जाते हैं रिलायंस वगैरह में देते हैं तो they are also giving us some smart cards. उसके अंदर आपके कैशबैक पॉइंट्स, आपके लॉयल्टी पॉइंट्स आपके जो हैं वो एडेड होते हैं. So this is how what you say that the system in education, the system in business, the system in health, everywhere electronic media has entered. Last but not the least, हमारे दो तरीके के मशीन होते हैं, एक होता है टेलर और दूसरा आता है वेंडर. एक होता है टेलर और दूसरा होता है वेंडर. तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि आपका एटीएम. Why do we require ATM? एक तो 24/7 आपको जब पैसे चाहिए, जहां पैसे चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो. Secondly, it is easy for us to carry the card rather than carrying the cash. Then बैंक का लोड तो कम होता ही है हमारे लिए, क्यूज वगैरह में खड़े होने से बच जाते हैं. And it is also a way of providing financial discipline. क्योंकि जब आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप पैसा उतना ही निकालते हो जितना आपको चाहिए. अगर घर में कैश होगा तो वो खर्च होगा. और दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो है आपके वेंडर मशीन, वेंडिंग मशीन्स. इफ यू गो टू द सिनेमा हॉल्स, मेट्रो, एंड स्पेशली इन द railway and airports,
आपने देखा होगा एक बड़ा सा वेंडिंग मशीन रखा होता है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, लाइक चिप्स, देन आपके कुछ खिलौने, देन आपका दिस कूल ड्रिंक. इफ यू पुट द मनी एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप डालते हो या फिर आप ज्यादा डालते हो तो वो आपको कैश वापस करता है. एंड देन आफ्टर पुशिंग दैट बटन, वो जो सामान है दैट कम्स डाउन एंड यू कैन पिक इट अप. In India, these vending machines are very, very less as compared to any other country. बाकी कंट्रीज में तो कॉफी, टी, बेवरेजेस, एवरीथिंग इज वेंडिंग मशीन. यहाँ तक कि आपके जो टिकट्स हैं, हम स्विट्जरलैंड गए थे तो वहां पर मतलब हमारे लिए तो दीज वर ऑल न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें तो वहां पर जाकर ना पैसों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि हमारा 1 रुपया वहां का 1000 रुपये. तो वहां पे क्या है सिस्टम था, आप प्लेटफॉर्म में जाओ, प्लेटफॉर्म में आप बता दो कि आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए जाना है, जस्ट पुट अप एंड द एंटायर अमाउंट विल कम. यू हैव टू पुट द कैश, और इफ यू आर हैविंग द इंटरनेशनल कार्ड आप डालो, it will put. And it was placed in all the small to large platforms. हमारे यहाँ पर है, बट दे आर ओनली लिमिटेड टूवर्ड्स द एयरपोर्ट्स. कुछ जगहों पर आपके उसमें है, वो है मैगजीन का भी है, आपने उसको पुट किया तो वो मैगजीन उठ के आता है, क्योंकि चेन्नई वाले एयरपोर्ट में है मुझे पता है. तो यू कैन बाय द थिंग्स लाइक दैट, बट दे आर लिमिटेड. But in other countries, these are very common for all the things, whatever you want to buy. आपको कॉफी करना, आप जाओ और जाकर वेंडिंग मशीन आपको कॉफी उठा के दे देता है. तो नाउ मतलब ये सब कुछ कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज्ड है. द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वेंडिंग मशीन, एटीएम्स, इन सबको पढ़ने का मतलब ये है कि दे ऑल आर ऑपरेटेड समवेयर और द अदर थ्रू द कंप्यूटर्स. कहीं ना कहीं इनमें हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ता है, एंड यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग दीज टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए काम करती है. बट गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज टू गो टू, ये सब ऐसा नहीं कि हम लोकल शॉपिंग जाना पसंद नहीं करते हैं. व्हेन हमारे फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वी लव गोइंग शॉपिंग आउटसाइड. क्योंकि जो फिजिकल ट्रेडिशनल शॉपिंग है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें तो अपना ही एक मजा है. वो जो पर्सनल टच है, द वन द वे द शॉपकीपर हेल्प्स यू आउट, वो आपका बिल्कुल अलग है. येट अब पैंडेमिक था, वी कुडंट गो आउट, एवरीथिंग वाज डिलीवर्ड एट आवर होम स्टेप. टुडे वी आर नॉट dependent on the newspaper to come to our house in the morning. Everyone is having the mobile phones, और वही newspapers, Times of India या Hindustan Times, can be read on the electronic mode. Then all these business can be carried 24/7 and 365 days round the year. The scope of such business goes to business, यानी कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करती है, रॉ मटेरियल्स के लिए, सप्लाइंग के लिए, कोटेशंस के लिए, एनी कम्युनिकेशन, दे यूज द इंटरनेट. सेकेंड इज B2C, जहां बिजनेस कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऑल द प्लेटफॉर्म्स. देन थर्ड है आपका C2C, जहां कंज्यूमर के साथ में यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म जुड़ जाता है, लाइक OLX. देन इंट्रा बी, विद इन द बिजनेस ओनली. अभी जैसे दिल्ली के अंदर कल से, आई थिंक आपका नहीं पता है, बट ऑफकोर्स टिल 8th स्टैंडर्ड द स्कूल्स आर शट डाउन एंड द स्कूल्स आर गोइंग टू वर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. Many of the business have been asked to go online, work from home. तो ये जो वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं क्या है, ये इंट्रा बी है. वहां से आपको ऑर्डर मिल रहा है, यहां से आपको काम करके भेजना है, दैट इज आपका. देन दे आर हैविंग द benefits as well as there are certain limitations also. Then we have studied what are online transactions,
हाउ कैन वी बाय और सेल एनी प्रोडक्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ये आपका 6 मार्कर क्वेश्चन आता है. देन व्हाट आर द ट्रांजैक्शन रिस्क, कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, कभी गलत एड्रेस पर चला जाता है, कभी पेमेंट की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी हमारी तरफ से कट जाता है तो कभी उनकी तरफ से. देन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, वायरस, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है, हैकिंग. But if you want to set up your business, you should have a good website, you should have efficient staff, technologically and technically advanced, good computer system with good hardware. एंड जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर, लाइक कुछ कंपनीज में ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत जरूरी हो जाती है, वो आपके लिए जरूरी है. देन वी हैव ऑल्सो read about the business using the outsourcing, यानी कि अपने काम को किसी और कंपनी को ऑन कॉन्ट्रैक्ट देना. जैसे आपने ये फिल्म एक्टर्स वगैरह होते हैं, ये लोगों का किसी ना किसी पीआर एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है. वो पीआर एजेंसी इनके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है, इनके इमेज को बनाना, इनके इमेज को बिगाड़ना, सब कुछ उनका काम होता है. तो ये जो पीआर एजेंसीज हैं, दे आर ऑल आउटसोर्सेस. They work for many companies together. And India is the largest BPO providers for many large companies across the globe. BPOs के थ्रू हम बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे डेटाज हैं या मतलब की वर्क है वो करते हैं. एंड केपीओज में हम नॉलेज से रिलेटेड जो आपके डेटा हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं. देन वी हैव रेड अबाउट द स्मार्ट कार्ड्स, ATM cards. The cards are in different way. Health के लिए भी आजकल कार्ड है. Then if you are going to the market, you are having the shopping carts. वो पढ़ा. ATMs as well as the vending machines. So these are all the emerging mode जो आने वाले टाइम में they would be more prevalent than the traditional business. Of course, traditional business कभी खत्म नहीं होगा. ट्रेडिशनल बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता है. ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हम ऑनलाइन को ऐड ऑन कर सकते हैं, ट्रेडिशनल को कम और ऑनलाइन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बट ट्रेडिशनल बिजनेस का जो इंपॉर्टेंस है, जो रेलेवेंस है, वो हमेशा रहेगा. सो दिस इज हाउ द इमर्जिंग मोड using the electronic media has now revolutionized our lives.